Hello children, I hope you all are good. Today we are going to study one interesting chapter of SST that is related to the history. The name of the chapter is When, Where and How. So in this chapter we are going to study about our past, why there is a need to study the history, when the things were happened and how we are going to calculate the dates, etc. So in this chapter basically you are going to understand the basic concept of the history. So let's start the chapter. History. What is it? History is all about the people, rulers, society, events, festival, wars and many important events which happened in the past times. Basically if you can see this word history, so what you will get? His, H-I-N-S, his, and then is bifurcated story, S-T-O-R-Y, his story means the person's story, the person's background, the person's past. So history is all about our past. History is the story or the story of man from the earliest period to the present day. So Herodotus is known as the father of history. He was the Greek historian and he did lots of research on the past events and arranged them in the chronological order, analyze each and every event. That's why we called him as a father of history. So mark down this beta, this can become in the question form also, who is known as father of history. So Herodotus. Now according to the Herodotus, history means study or investigation of the past time events. When we are going to investigate, discover what happened in our past, that is the history. Now through it we come to know that more about our ancestor and how we have reached to this present era today. So this all tell us about the past events. It tells us about the progress in the different fields, whether it's the art or you can say the architectures or what the development have been done in the languages. So language में या religion में, culture में, civilization में, किसी भी field में, education में, sports में, पुराने समय से लेके अब तक जो भी changes आए हैं, जो भी development आई है, that is the history. So we study history to better understand our present day problem. बेटा हिस्ट्री से क्या होता है, हम अपने पास से सीखते हैं हमने क्या गलतियां की, क्या अच्छी अचीवमेंट्स की, क्या क्या स्ट्रैटेजी हमने किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेके अपनाई और इस वजह से हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन ओनली वी कैन मेक द बेस ऑफ आवर प्रेजेंट डे. नाउ if you are going to make the time frame of history, so we can divide the history into the 3 period. 3 phases में हम divide कर सकते हैं history को study करने के लिए properly. First is the ancient history, that is from earliest time to about 8th century AD. Then after that the second phase of history we can conclude with the 8th century to the 18th century and that is known as the medieval history, जिसे हम मध्य युग हिस्ट्री भी कहते हैं, मध्यकालीन हिस्ट्री. ओके, एंड देन थर्ड फेज यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द 18th century टू टिल डेट. आज तक 18वीं सदी से लेके आज तक का जो भी पीरियड होगा दैट इज नोन एज मॉडर्न हिस्ट्री. सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड द होल हिस्ट्री इनटू द 3 phases: ancient history, medieval and modern history. Now another 2 facts that you need to know बेटा, एक प्री हिस्ट्री होती है और दूसरा हिस्ट्री होती है. अब प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड है बेटा व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड. जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो हमारे प्रीवियस एंसेस्टर थे, एट दैट टाइम दे वर नॉट नोइंग हाउ टू राइट. सो हमारे पास उस समय का कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है. So whatever we get the information about the prehistory, that is through the artifacts, whatever we have get from the excavation. जो भी हमने खुदाई करके जो भी हमें सामान मिली है ना बेटा, उससे हमने इस प्री हिस्ट्री का हिसाब लगाया है, उसके बारे में हमने कुछ पता लगाया है, क्योंकि हमारे पास इस प्री हिस्ट्री पीरियड का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है.
देन द सेकेंड पार्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं बेटा जब राइटिंग डेवलप हो गई एंड पीपल स्टार्टेड टू राइट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, देयर एनवायरनमेंट एंड वट एवर दे हैव गेट एट दैट टाइम. सो जिस समय का हमारे पास रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल होता है उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं हिस्ट्री. मीन्स आफ्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग हैड बीन डेवलप्ड. सो आपको ये हमेशा याद रखना है, प्री हिस्ट्री no written record available, and history we are having n number of written records. Now we are coming to the dates. अब बात आती है कि हिस्ट्री तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन हिस्ट्री में डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या बिना डेट के काम चल सकता है? देखो बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं. आप क्या बता सकते हो कि आपने सबसे पहले किस दिन चलना शुरू किया होगा? क्वाइट नॉट पॉसिबल. लेकिन आपका बर्थ कब हुआ था? दैट यू नो. सो देयर आर सम इवेंट्स और इंसिडेंट्स जिनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनको रिकॉर्ड किया जाता है. तो जब हम उनको डेट वाइज, ईयर वाइज मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इम्पॉर्टेंस डेट की बढ़ जाती है और वी केम टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, इवेंट एक्सेट्रा. तो जब लोगों को ये समझ में आया कि ये काम हुआ है, इसको नोट करना चाहिए, समय इसका नोट करना चाहिए, तो वहाँ से डेट की इम्पॉर्टेंस बढ़ती गई. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हेन इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम, तो आप फटाफट बोलते हो 15 अगस्त 1947, है ना, हमें पता होता है. और यही अगर नोट नहीं होता तो एक ओरल हिस्ट्री के बाद शायद लोग भूल जाते. अब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है रिकॉर्डेड है तो आपको पता है, लेकिन आप कब चलना शुरू हो गए शायद मम्मी को ओरली याद होगा, धीरे धीरे मम्मी पापा भी भूल गए. So there is a importance of date so that we can come to know about the events when they happened. अब dates भी कैसे निकाली गई? देखो, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. देखो, ये एक टाइम लाइन है, ओके, एंड here is the zero. This is zero. Now what happened? ज़ीरो से पहले जो भी इंसिडेंट्स हुए होंगे that is known as BC. B.C. BC का मतलब होता है बेटा बिफोर क्रिश्चियन. इसको हम BCE भी लिखते हैं, बिफोर क्रिश्चियन एरा. ठीक है, E, BCE, बिफोर क्रिश्चियन एरा. यू कैन से इन द नोट बॉक्स दैट इज, और बिफोर कॉमन एरा. अब BC क्या मतलब है इसका? सी, वी हैव टू मेक द यूनिफॉर्म काउंटिंग फॉर द होल वर्ल्ड. तो हुआ ये कि जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था ना, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड, तो जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ वहाँ से ज़ीरो से पहले जो है, उनके बर्थ से पहले की गिनती जो है वो BC कहलाती है, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर क्रिश्चियन एरा. अंडरस्टैंड? ज़ीरो यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की गिनती जितनी भी हुई होंगी, क्योंकि देखो उनके बर्थ से पहले भी काउंटिंग रही होगी, उनके बर्थ से पहले भी बहुत सारे इवेंट्स और इंसिडेंट्स हुए होंगे, तो उससे पहले की जो काउंटिंग होगी दैट इज नोन बाय द नेम BC और BCE. BC बिफोर क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ, और BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वट एवर द डेट्स आर हेयर, उनको हम कैसे लिखते हैं? AD करके लिखते हैं. ज़ीरो के बाद की जितनी भी इंसिडेंट्स होंगे ना बेटा, उन्हें AD करके लिखा जाता है. AD मीन्स अन्नो डोमिनी. हियर इट हैज़ बीन गिवन टू यू. अन्नो डोमिनी मीन्स द नेम ऑफ ईयर ऑफ लॉर्ड, कि हमारे लॉर्ड जो हैं उनके नेम पर ये है. और CE भी बोला जाता है इसे. CE मीन्स कॉमन एरा. यानी आप देखो, जैसे हमारे भी 2-2, 3-3 नेम हो जाते हैं ना, वैसे नेम है यहाँ पे. ज़ीरो से पहले की काउंटिंग BC और BCE, और ज़ीरो के बाद की काउंटिंग CE और AD. इस तरीके से हम लिखते हैं. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ज़ीरो ईयर इज टेकन एज द बेसिस ऑफ ऑल डेट्स. इट इज टेकन एज द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. इसीलिए देखो लिखा हुआ है ना, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इट इज ऑल्सो नोन एज ईयर ऑफ द लॉर्ड. इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन द 1947. BC आएगा या AD आएगा? ज़ीरो के बाद का 1947 है ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? AD. और अगर मैं कहती हूँ कि जो मौर्यन एम्पायर है
वो 8th सेंचुरी, 0 से भी 8th सेंचुरी पहले आया था, देन वी विल राइट 800 BCE. So beta, you have to understand the concept of BC and AD. See, 0 year जो होता है ना बेटा, that is taken as the basis of all dates. मैंने आपको यहाँ टाइमलाइन बना के दिखाई, this is the 0 year, ये बेस है. अब क्या होगा, अगर आपके 0 से पहले की जितने भी इंसिडेंट्स होंगे, that will write as a BC or BCE. See, 0 is taken as the birth year of Lord जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ ना, दैट इज 0 ईयर. सो क्रिश्चियनिटी में और टू मेक द यूनिफॉर्मिटी इन द होल वर्ल्ड ना, वी हैव अडॉप्टेड दिस काउंटिंग, दैट इज द क्रिश्चियनिटी काउंटिंग. सो लॉर्ड जीसस का जो बर्थ है दैट इज 0 ईयर, एंड बिफोर दैट वट एवर द हैपन दैट इज BC और BCE. अब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो उस समय लोग उसे कहते थे द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे भगवान का ये ईयर है. So इसलिए 0 is the base. Now India get its independence on 15th August 1947. If I have to write 15th August 1947, so you have to understand कि India got its independence before the birth of Jesus Christ or after the birth of Jesus Christ. If it is after the birth of Jesus, so you will write AD, not BC. That you have to understand. Okay beta? Now 2021 BC refer to the year that took place 2021 before this base year or after. That you have to understand. क्योंकि 2021 बेटा अभी भी आया था और पहले भी आया होगा. Let's say 2023. Right now we are in the 2023 era. Okay. So 2023 is the present year. But 0 से पहले भी क्या 2023 था? बिल्कुल था. अर्ली ह्यूमन बींग्स थे. इट्स ओके कि वी डोंट नो द काउंटिंग अबाउट दैट, बट उस समय भी लाइफ रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी. सो अगर 0 से पहले का 2023 होगा, सो यू विल राइट 2023 BC. बट अगर प्रेजेंट डे की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ये तो जीसस के बर्थ के बाद की बात है. सो वी विल राइट 2023 AD. Now let's take the another example. If you want to know in 2021 AD how long before 2021 BC, then what will you do? आप क्या करोगे? आज का जो 2021 रहा होगा और पहले का जो 2021 है, दोनों को प्लस कर दो and you will get your answer. So in this way we count the date. So BC, BCE before 0 and AD or CE after the 0. Now one another thing you have to know, that is different civilization have their own system of date and counting. If you take the example of India ना बेटा, we are having Vikram Samvat, we are having Saka Samvat, और मैं आपको बताऊं you will be amazed बेटा कि इंडिया ने तो बहुत पहले काउंटिंग सीख ली थी. कहा जाता है ना, जब शून्य दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, isn't it? तो विक्रम संवत अगर आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग तो आज का जो ईयर है दैट इज 2080, और हम इंग्लिश काउंटिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्रिश्चियन काउंटिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ईयर है हमारा 2023. तो ये आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना है कि जो भी सिविलाइजेशन हुई, जहाँ भी डेवलप्ड हुई, जो भी कंट्रीज पहले डेवलप्ड हुई, उनकी जैसे जैसे काउंटिंग या राइटिंग हैबिट डेवलप हुई, तो उनके अलग अलग सिस्टम हैं डेट और काउंटिंग के. बट पूरी वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, हर देश की अलग काउंटिंग, हर देश का अलग ईयर चलेगा, इसलिए एक ही काउंटिंग बनाए रखने के लिए क्रिश्चियनिटी काउंटिंग को एक्सेप्ट किया गया है. सो अगर इंडियन विक्रम संवत देखते हैं आप, तो इंडियन विक्रम संवत के अकॉर्डिंग हम 2080 में हैं. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ Ashoka became a king in the 268 BC. That example wonderful has been given in your book. अब 260 BC में अशोका जो है राजा बने. अभी कौन सा ईयर चल रहा है अगर हम देखते हैं 2023. आपकी बुक में 21 लिखा है, बट मैं आज का ईयर लिख के चलती हूँ 2023. तो अगर आपको बताना है कि अशोका कब बने थे इंडिया के राजा, सो व्हाट यू विल डू, 2023. ओके, ये आज का ईयर. नाउ प्लस, क्योंकि 0 से 268 है ना, तो आप उसे भी तो प्लस करोगे.
So 268 you plus it, what you will get? If you are going to plus 2023 plus 268, you will get 8311 and then 62819. This is 2091. 2091 year ago, the Ashoka was the king of the great subcontinent India. So I hope you understand the dates, how to calculate it. Now moving to the another topic, that is geographical extent. If you are going to see the India, the present land mass of India is 3.28 million square kilometer. So आप कह सकते हो India is the 7th largest country in the world geographical wise, area wise. लार्जर कंट्री है बेटा वर्ल्ड की, और आज भी लार्जर कंट्री है अगर वो 7th रैंक रखती है वर्ल्ड में. और एंशियंट टाइम से देखोगे सो हमारी टेरिटरी बेटा इतनी ज़्यादा एक्सपेंडेड थी कि प्रेजेंट डे अगर आप देखोगे इंडिया तो था ही था, इंडिया के साथ आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, these all territories covered by the Indian subcontinent, and this entire land mass was known as भारतवर्ष. हम भारतवर्ष कहलाते थे, भारत के नाम से जाने जाते थे, and later on हिंदुस्तान, हरा भरा देश. This vast landmass is called as the Indian subcontinent today also. It extends right from the Himalayan in the north. आप देख सकते हो हमारे नॉर्थ में ये पूरा हिमालयन रीजन है. So ये हिमालयन रीजन से स्टार्ट हो रहा है आपका, और आप देखते जाओ इसे पूरा ऊपर जाओगी तो पामीर प्लेट्यू भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा एक नॉट की तरह. पामीर प्लेट्यू है इसके नॉर्थ वेस्ट में. देन मूव टू द डाउन, आप यहाँ आते हो, यू विल गेट द इंडियन ओशियन. तो आप देखो इसका एक्सटेंट कितना ज़्यादा है. इंडिया आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है अगर आप बात करते हो इक्वेटर से इसकी दूरी की तो. सो इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री. आप इसके राइट साइड में देखो वी आर हैविंग बे ऑफ बंगाल, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं वी आर हैविंग अरेबियन सी ऑल्सो. दिस वास्ट टेरिटरी कंप्राइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म्स. सब कुछ है भारत में बेटा, सब कुछ. यू नो नीड टू गो एनीवेयर टू फाइंड आउट कि स्नोफॉल कैसे होती है, कोस्टल रीजन क्या होते हैं, ओशियन क्या है, प्लेट्यू क्या है, डेजर्ट क्या है. नो, यू विल गेट एवरी रिलीफ फीचर, एवरी लैंड फॉर्म्स इन इंडिया. See the great Himalaya, go and visit. Then after that you are having the Indian desert in the Rajasthan. You can visit here Aravali, Vindhyachal, many hills are there. Then you can visit the ocean also. Here you can go with the Arabian Sea, Bay of Bengal, Indian Ocean. तो आपको oceanic area का नज़ारा भी मिल जाता है. Then this region, you can see this is in the triangular form. This is our Deccan Plateau. So we are having plateau also. So that's why because of the different land forms और आप कह सकते हो different relief feature, इंडिया की डाइवर्सिटी जोग्राफिकली भी बढ़ जाती है और आपकी कल्चरली भी, रिलीजियस भी. We are having the different dresses, different food, different custom, different lifestyle, different climate, different vegetation, different wildlife, crops, etc. बहुत वैरायटी है इंडिया में, है ना. सांबर वड़ा से लेके दाल बाटी चूरमा तक सब कुछ खाने को मिलता है इंडिया में. एंड डिलीशियस फूड्स तो हैं ही. ड्रेसेस देखो आप, फेस्टिवल देखो, अभी गणेश चतुर्थी आ जा रहा है, फिर नवरात्रि आ जाएगा आपका, ईद भी सेलिब्रेट करेंगे हम, देन क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे. क्योंकि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है उस हिसाब से हमारा डिफरेंट कल्चर डेवलप हुआ, डिफरेंट लैंग्वेज डेवलप हुई, और आज इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में है. बट कैन यू से कि ये डाइवर्सिटी है, लोगों का डिफरेंट लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से हम सब अलग अलग हैं? नो, दिस डाइवर्सिटी मेक अस द यूनिक फीचर एंड स्टिल वी आर यूनाइट, है ना. देयर इज अ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी इन इंडिया. सो in this section you have learned different relief feature which found in the India, and you can say India is the land of the many rivers. In your map you can see the river Ganga, holy Ganga. Then we are having the Brahmaputra, Narmada, Tapi, Kaveri, Godavari, many rivers. So this is the physical feature of India. Now
you can see water is the basic necessity that people prefer to settle their life. And that's why from the ancient time बेटा ना लोग नदियों के पास ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि सर्वाइवल के लिए पानी ज़रूरी है, फिर एग्रीकल्चर के लिए पानी ज़रूरी है, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पानी ज़रूरी है. So many civilization has been developed near the banks of river Ganga, Indus. You must have heard about the Harappan civilization. So बड़े बड़े एम्पायर, जो पावरफुल एम्पायर थे ना, whether it's the Magad empire, they all grown or developed near the river Ganga. So the archaeologists have found many evidences that the region along the Narmada river was inhabited by the hunter gatherer. अब उन्होंने ये बताया हमें कि नर्मदा नदी के किनारे हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ हंटर गैदरर बहुत ज़्यादा रहते थे, या हमें इंडस रिवर के किनारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जहाँ एडवांस सिविलाइजेशन डेवलप थी. तो ये सारा का सारा ये बताता है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. And you can see in your map that India is a land of river. We are having abundance of water, but of course we need to save it also. Now moving to the interaction among the people. अच्छा, इंडिया का इतना बड़ा जोग्राफिकल फीचर है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो क्या हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या बाहर से लोग बिल्कुल भी हमारे पास नहीं आते थे? नो, बिल्कुल नहीं बेटा. इंडिया का इंट्रैक्शन स्टार्टिंग से वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से रहा है, बिकॉज वी आर द बेस्ट वन, वी आर हैविंग द लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी, वी आर हैविंग द गुड पास्ट. सो इंट्रैक्शन तो शुरू से रहा है. मैनी ट्रैवलर्स, मैनी यू कैन से द आपके जो घुमंतू समुदाय के लोग होते हैं, दे ट्रैवल्ड हियर, दे विजिटेड इंडिया, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडिया. So people visit the other places, and in the past people set out long journey, and especially India तो बहुत सारे लोग घूमने आए हैं because of its natural vegetation, because of its relief feature, because of its civilization, developed writing, developed artifacts, बहुत सारी चीज़ें थी. तो मैनी ट्रेडर्स ट्रैवल हेयर. और ट्रैवलर्स जो होते थे ना बेटा, जो ट्रेडर्स होते थे दूसरी जगह से आते थे इंडिया में, तो कभी अकेले नहीं आते थे. दे ट्रैवल्ड इन देयर कारवा. हेयर इट हैज़ बीन रिटन ना, कारवा मीन्स द line of many traders, means many traders come together in a line, travel so that they can help each other. एट दैट टाइम ऐसा तो नहीं था ना कि भाई एयरवेज भी है, रोडवेज भी है, पता होता नहीं था रूट का आसानी से. तो लोगों को अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए लगता था क्यों ना ग्रुप में चलें. तो जब वो ग्रुप में चलते थे ना तो उनको अपनी सिक्योरिटी फील होती थी. सो दैट्स ग्रुप इज़ नोन एज कारवा. अब जब ग्रुप में आते तो सिल्क है, जेम्स हैं, स्पाइसेस हैं, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स हैं और अदर थिंग्स को वो लेकर आते थे और ट्रेड करते थे. सो इन दिस वे ट्रेड वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और ट्रेड के साथ साथ क्या आएगा, जब लोग आएंगे यहाँ पर ट्रेड करेंगे, सो दे विल एक्सचेंज देयर लैंग्वेजेस, देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर रिलीजन, वो भी एक्सचेंज होगा बेटा. तो इस तरीके से बहुत सारे प्रीचर्स भी आए हैं. यू कैन सी द बुद्धिस्ट प्रीचर्स, दे मूव फ्रॉम हेयर टू देयर एंड दे प्रीच द गुड डीड्स, गुड थिंग्स, कैसे लाइफ को सर्वाइव करना है. तो इंट्रैक्शन इंडिया का रहा है. Now other adventures अगर आप देखते हो, opted for the sea routes and travel in ships from one country to another. ये भी लोगों का शौक रहा है कि अच्छा सी रूट डिस्कवर करने हैं, हमें शिप पे ट्रैवल करना है. तो एडवेंचर के लिए भी लोग जो है इंटरेक्ट करते थे और ट्रैवल करते थे. एंड सम पीपल ट्रैवल जस्ट फॉर फन. So there are so many reasons how people and why people travel from one place to another. Now all this interaction enriched the life of the people. People came to know about the different distant land. For example, Huan Sang, Fai Yan, Xuanzang, they traveled from China to India to learn about the Buddhism. So we came to know about the China also. Ibn Battuta, Morocco se. So many people are here and they visited and they came to know about our land, and we came to know about their country also. So people learned from each other. This was through the interaction that knowledge of zero and decimal spread from India to the other part of Europe. तो ज़ीरो की नॉलेज और डेसिमल की नॉलेज इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैली. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मैडम इतनी देरी से समझाई जा रही हैं, मैम के पास क्या एविडेंस है, या ये हिस्टोरियंस जो हैं इतनी सारी बुक्स और चैप्टर लिख देते हैं, इनके पास क्या एविडेंस है.
हाउ दे कैन से कि भाई फाहियान आ गया था या ह्यून सेंग आ गया था या इसने अटैक किया या अशोका जो है वो राजा बन गया था। तो रिसोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहाँ से कह कर बता रहे हो। सो बेटा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लिटरेरी सोर्सेज एंड नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये हिस्टोरियंस के टूल्स हैं, सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं बेटा दैट वी गेट फ्रॉम द एक्सकेवेशन, खुदाई करके हमें मिलते हैं, या जो मॉन्यूमेंट्स फॉर्म में हमें मिलते हैं, या फिर कहीं पे इनग्रेव्ड, जब हम किसी चीज़ को ना ऐसे इनग्रेव्ड करके लिखते हैं, ओके, तो उस फॉर्म में मिलते हैं। पॉटरी हो गई, मेटल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, आपके इंस्क्रिप्शन हो गई, ज्वेलरी हो गई, तो वेपन्स हो गए, टूल्स हो गए। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं बिकॉज वी गेट फ्रॉम द एक्सकेवेशन और वी हैव सीन एज इन द बिल्डिंग फॉर्म्स। बट लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं दैट आर द रिटन रिकॉर्ड, एज द नेम सजेस्ट लिटरेरी, रिटन रिकॉर्ड, जिसमें आपकी बुक्स आ जाती हैं, चाहे वो रिलीजियस बुक्स हों, चाहे वो आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट रही हों, चाहे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे सर्वे रिपोर्ट्स हैं, whatever the written records are here, that is literary sources. So let's discuss these two sources in detail form. First of all, we are moving to the literary sources. Literary sources of history give us the written record of that time period. So we came to know about, अच्छा इस रूलर ने ये काम किया था, इस रूलर ने ये फाइट लड़ी थी, ये वॉर लड़ी, ये हारा, ये जीता, because we are having the written record. In India, many ancient manuscripts we have found and preserved in the museum or in the temples. Now, what is manuscript? ये तो मैडम ने बताया ही नहीं और बोल दिया। Manuscript होती है बेटा हैंड रिटन बुक, बिकॉज इन एंशियंट टाइम ना प्रिंटिंग मशीन वॉज नॉट डेवलप्ड। आप लोग इस एरा में रह रहे हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर, एट दैट टाइम द टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट बिन डेवलप्ड, सो बुक्स वर रिटन इन द हैंड रिटन फॉर्म। सो हैंड रिटन बुक इज़ नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट, और बहुत सारी हमें मिली हुई हैं जो हमें अलग अलग मंदिरों में और म्यूजियम में मिली हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैव बीन फाउंड इन द डेलिकेट कंडीशन, कुछ की तो हालत मतलब ऐसी कि बहुत प्रिजर्व करके रखना पड़ रहा है। क्यों ये डेलिकेट कंडीशन में है? बिकॉज दे वर रिटन ऑन द बार्क ऑफ बर्क ट्रीज। आपने देखा ना ट्री होता है, ट्री का आपका तना होता है, तो जब आप तने को ऐसे ब्राउन ब्राउन जो कवर होता है ना उसको आप हटाते हो तो अंदर वाइट वाइट कलर का आपको बार्क दिखता है, उस पे लिखते थे। या पाम लीव्स हो गई, उस पे लिख दिया। तो इन पे जब लिखते थे ना तो इनको कहा जाता था भोजपत्र। अब इनको इतने सालों तक प्रिजर्व करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई दे आर इन द डेलिकेट पोजिशन। नाउ भोजपत्र दे आर गोइंग टू बी डिकेड विद द passage of time. These and other writings from the ancient time are of religious and as well as the secular in nature. क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज क्या है बेटा, हर तरीके के राइटर्स हैं, कोई धर्म पे लिख रहा है और कोई देश कैसे चलाना है ऐसे भी लिख रहा है। तो आपको रिलीजियस बुक अगर मिलती हैं, यानी कि जो धर्म के नाम पर लिखी हैं, धर्म के बारे में बता रही हैं, सो वो रिलीजियस टेक्स्ट कहलाएंगे, रिलीजियस लिटरेरी सोर्स कहलाएंगे। और ऐसे रिसोर्सेज जो आपको अपार्ट फ्रॉम रिलीजन हर अदर चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो सेक्युलर लिटरेचर कहलाएंगे। सो रिलीजियस लिटरेचर में अगर आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री में, सो हिंदू रिलीजियस लिटरेचर कंप्राइजेस द महाभारत, द रामायण, द वेदास, द स्मृतिस। हाउ मेनी वेदास वी आर हैविंग? फोर वेदास वी आर हैविंग, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदास। देन महाभारत और रामायण की कहानी आपने बहुत सुनी होंगी। स्मृतिज लाइक मनु स्मृतिज वी आर हैविंग, नारद स्मृति वी आर हैविंग, उपनिषद्स हैं, पुराणास में हमारे को इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड्स और बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज दी हुई हैं। इन एडिशन टू दीज वी आर हैविंग द जैन लिटरेचर ऑल्सो, बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो। बुद्धिज़्म की अगर आप बात करो ना, बुद्धिज़्म में भी आपको 3 सेक्युलर बुक्स मिलेंगी तिप्तिका बास्केट नाम से, है ना, तो वहाँ पे भी हमें मिलता है। जैनिज्म लिटरेचर भी हमें मिलता है। देखो तिप्तिकास एंड जताकास, जिसे हम हिंदी में जातक कथाएं भी कहते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द बुद्धिज़्म। एंड अंगास आर द रिलीजियस लिटरेचर सोर्सेज फॉर द जैनिज्म. So these are the great example for the religious literature sources. This vast literature also throw light on the different aspects of our lives, such as food, habit, dress, lifestyle, etc. तो जब भी आपको रिलीजियस से रिलेटेड कोई बुक मिलेगी ना बेटा, तो दैट कम्स अंडर द रिलीजियस लिटरेचर सोर्सेज.
नाउ मूविंग टू द सेक्युलर लिटरेचर. सेक्युलर लिटरेचर की बात करें तो वी आर हैविंग द वंडरफुल बुक फॉर द सेक्युलर लिटरेचर, दैट इज अर्थशास्त्र. एंड अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय द चाणक्य, द ग्रेट चाणक्य. चाणक्य जो थे ना बेटा, वो आपके मौर्यन एम्पायर के राजगुरु थे. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अलावा नीति शास्त्र, मुद्र राक्षस, ये भी आपको लिखी हुई है. देन मुद्र राक्षस बाय विशाखा दत्ता एंड हर्षचरिता बाय द बाण भट्ट. बाण भट्ट की जो ये हर्षचरित है ना, that is the wonderful composition for Raja Harshvardhan. King Harsha too has written the 3 books. जो King हर्ष ने लिखी थी, that was the Nagananda. After that he has written the Ratnavali, and after that he has written the Priyadarshika. So see, from there you can understand that Raja Harsha was very keen to write anything. He was a good writer, that's why he has written the 3 books, though he was a great king. So उनको लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक था. Apart from that, we are having the great legend, that is the Prithviraj Raso, written by Chandrabardai, that deals with the Prithviraj Chauhan. Then apart from that, we are having Raj Tarangani also. Raj Tarangani में कल्हानस ने लिखी है, and they had given the detailed history of the Kashmir's chronological order, step by step. पहले कश्मीर कैसा था, फिर क्या हुआ, all detail has been given in the Raj Tarangani. Indica has been written by the Greek ambassador Megasthenes. Megasthenes was the ambassador in the Chandragupta Maurya Empire. So he has recorded each and everything in the detail कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया, how he administered the great empire, उनकी मिलिट्री सेना कैसे थी, उस समय का आर्किटेक्ट वर्क कैसा था. So he had given the minute detail of Mauryan empire. Then some historical fact can also be deduced from the Panini's, that is Panini's अष्टाध्यायी. बहुत अच्छा लिखा था, संस्कृत के महागुरु माने जाते हैं पाणिनि जी. एंड पतंजलिस की एक बुक आती है आपकी महाअभ्यासा. तो ये सारे बेटा बुक्स जो हैं, ये सिर्फ धर्म, ये आपको धर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये आपको पूरी होल मतलब डिफरेंट फील्ड के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम इन्हें सेक्युलर लिटरेचर कहते हैं. और इसी सीरीज़ में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे पोएटिक वर्क, ड्रामास एंशिएंट टाइम के आपको मिलेंगे, जो आपको उस समय की कुछ ट्रेडिशनल और इकोनॉमिक्स और फोकलोर्स कहानियों के बारे में बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल कालिदासा ने लिखी थी अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूतम. तो ये उनकी बहुत अच्छी बुक्स थी, जिन्होंने उस समय के फोकलोर्स और स्टोरीज़ को बताया था, उस समय के राजा के और उस समय के कॉमन पीपल के बारे में बताया था. नाउ वी आर मूविंग टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में हमने 2 पार्ट पढ़े, एक सेक्युलर और एक रिलीजियस. नाउ मूविंग टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. Archaeological sources means those sources we get from the ancient building or artifacts or human remains or landscape. So archaeology study जो होती है ना, past event को इन जो remains बचे हुए हैं ना, उन्हीं से study करती है. It is an important source to know about the ancient past. It helped us to provide us the different type of knowledge of the prehistory when we don't have a written record. तो प्री हिस्ट्री की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना बेटा, हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है. कई बार देखो बोन्स रिमेन्स हमें मिल जाते हैं, टीथ रिमेन मिल जाते हैं, बायो रिमेन्स हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स के, वो मिल जाते हैं. या आपके इंस्क्रिप्शन यू कैन सी, आप ये देख सकते हो मेटल पे लिखा हुआ है. देन रॉक इंस्क्रिप्शन है, ये इनग्रेव्ड है बेटा. इट इज़ नॉट नॉर्मली राइट, इट वॉज इनग्रेव्ड. जब आप डिक करके ऐसे लिखते हो ना, दैट इज. सो ये रॉक पे है और ये मेटल प्लेट पे है, ये लिखे हुए हैं. तो ये इंस्क्रिप्शन दे गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड. देन अपार्ट फ्रॉम दैट द मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग, यू कैन सी द नालंदा यूनिवर्सिटी, ये रिमेन्स है. एंड देन आपका अजंता केव आर्ट्स, आप उनकी केव पे देखोगे जिस हिसाब से उन्होंने पेंटिंग बनाई है, तो वो उस समय की स्टोरी को डील कर रहा है. तो ये दीज ऑल आर द आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज. देन आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस. एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर द मैसेजेस फ्रॉम द एंशियंट रूलर्स फॉर देयर ओन सब्जेक्ट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट बेटा, तो मीन्स प्रजा, लोग, यानी ये रूलर लिखवाते थे अपने लोगों के लिए.
और कैसे लिखवाते थे, इनग्रेव करवा के। अब ये इनग्रेविंग कहाँ होती थी, पिलर्स पे होती थी, वॉल्स पे, रॉक्स पे, मेटल प्लेट्स पे, स्टोन टैबलेट्स पे, यहाँ पे भी होते थे। एंड मैनी एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन हैव प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द नॉलेज ऑफ दैट टाइम पीरियड। What was the culture there, what was the tradition, और आर्मी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। अशोकन एडिक्ट्स आर द ग्रेट एग्जाम्पल फॉर एडिक्ट्स। अशोकन जितने भी आपको मिलेंगे ना ये इंस्क्रिप्शन, उसमें पूरा उन्होंने बुद्धिज़्म को, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रेट इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें। तो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देन वी आर हैविंग द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में सारी ओल्ड बिल्डिंग आपकी इंक्लूड होती हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, पैलेसेस होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कुछ आपको एज इट इज़ मिल रही हैं, कुछ टूटी फूटी मिल रही हैं, तो हम कहते हैं रिमेन्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मैनी ऑफ देम हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय मैनी इन्वेडर्स बट स्टिल वी कैन सी देयर रिमेन्स। जैसे आपने नालंदा यूनिवर्सिटी को देखा, इसे जला दिया गया था, फिर भी आप उसके रिमेन्स को देख सकते हो। Then these monuments throw the light on the excellent craft work, excellent architect work of that time. So architectural knowledge हमें मिलती है कि भाई उस समय के लोग कैसे इस तरीके के monuments और ऐसी बिल्डिंग बना पाते थे। आप ये देखो, कंबोडिया का आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, ये अंकोर वाट टेम्पल है। इसके अलावा इफ़ यू कैन विजिट ओनली इन इंडिया ना, यू विल बी अमेज्ड कि उस समय लोग ये इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना लेते थे, जब कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी मशीनरी नहीं थी। यू कैन सी मैनी एक्सकेवेशन इन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, मैनी प्लेसेस यू विल गेट। नालंदा के रूइंस आप देखो, विक्रमशिला के रूइंस, ये आपको बताएंगे नालंदा ग्रेट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी थी अपने टाइम पे उस समय की। कितना बढ़िया एजुकेशनल सिस्टम था इंडिया का उस समय। एंड बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, यू विल फाइंड कि पहले के लोगों के पास कितना अच्छा आर्किटेक्चरल स्टाइल था। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कैलाश टेम्पल का। यू समटाइम्स स्टडी एंड रिसर्च कैलाश टेम्पल। बेटा ये वन रॉक कार्व्ड आउट है, यानी एक बड़ा सा पहाड़ था और उसको काट कर इतना बड़ा जो है कैलाश टेम्पल बनाया गया। और उसमें अमेजिंग बात ये है कि बिल्डिंग हमेशा नीचे से बनती है ना, हम पहले बेस बनाते हैं और फिर बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। वो ऊपर से बना है, पहले उसका टॉप बना है फिर बेस बना। नाउ यू रिसर्च अबाउट द कैलाश टेम्पल इन इंडिया। ओके, नाउ द अदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स दैट इज द वर्क ऑफ आर्ट सच एज पेंटिंग है, स्कल्पचर है, टेक्सटाइल है, कॉइन, ज्वेलरी, पॉटरी, मेटल्स, टूल्स, वेयर्स एक्सेट्रा। सो दे हैव बीन एक्सकेवेटेड इन द डीप फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। तो एक्सकेवेशन के दौरान हमें जब मिलता है बहुत सारी सामान ना, तो उसको हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर। व्हेन इन आर्टिफैक्ट इज फाउंड, इट इज़ क्लीन्ड एंड रिसर्च टू नो अबाउट इट्स टाइम। तो क्या किया जाता है उसका, रेडियो कार्बन डेटिंग। आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है बेटा, तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितना पुराना रहा होगा। फिर हम कहते हैं अच्छा ये महाभारत के टाइम का था, या ये मौर्यन एम्पायर के टाइम का था, या कुशाना पीरियड्स का था। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें उसकी कितना पुराना है, कितनी डेट उसकी रही होगी, वो हम आइडिया लगाते हैं। देन वी आर हैविंग द डिफरेंट गांधार आर्ट है, आपकी मथुरा आर्ट है, बहुत सारी ऐसी आर्ट हैं जो हमने दूसरों से भी सीखी और अपनी भी दूसरों को दी हैं। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो सम द आइडल्स हैं, पेंटिंग्स ऑफ शिवा, विष्णु, बुद्धा, महावीरा टेल अस अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस इन दोज टाइम्स। अगर आपको बेटा हमारे देश में अलग अलग धर्म के भगवानों की मूर्तियाँ मिल रही हैं, मंदिर मिल रहा है, तो ये आपको क्या बताता है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पहले से ही हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नो इट। बहुत अच्छी टर्म्स इसमें दी हुई हैं, आप देख सकते हो, आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं। नंबर 1 आपको दिया हुआ है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या होती है? व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंशिएंट राइटिंग और रिकॉर्ड, बहुत पुराना। अब मान लो आपका मन कर गया हिस्टोरियंस बनना है, अब हिस्टोरियन की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप चाह रहे हो जो पहले लिखा हुआ था उसे पढ़ें। अब पहले वाली राइटिंग एंड टुडेज राइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट। लैंग्वेज में फ़र्क है बेटा। तो जो हिस्टोरियंस एंशिएंट राइटिंग को, रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं ना, जब हम इस तरीके की स्टडी करते हैं तो इसे पैलियोग्राफी कहा जाता है। पैलियो मतलब पुराना। देन स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, व्हाटएवर रिटन ऑन द रॉक्स और पिलर और मेटल, दैट इज नोन एज एपिग्राफी।
मान लो आपने इनको स्टडी करने की कोशिश की है जो इनग्रेव्ड है, तो ये स्टडी कहलाती है एपिग्राफी, ठीक है। जैसे आप साइंस पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, वैसे ये एपिग्राफी है। देन स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। अब बहुत सारे कॉइन तो हमें मिल गए, उस पर क्या लिखा है, क्या स्ट्रक्चर है, उसे अंडरस्टैंड करना है। सो दैट स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। एंड देन आफ्टर दैट आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओल्ड बिल्डिंग रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. So these terms you have to understand. Now we are moving to the last archaeological sources, that is the coins. अभी मैंने आपको बताया था अगर हम कॉइन की स्टडी करते हैं तो उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं. द कॉइन्स आर फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड दे टेल अस अबाउट द साइंस द टेक्नोलॉजी हैड डेवलप्ड इन द पास्ट. क्योंकि अगर आप कॉइन्स देखोगे ना, वंडरफुल कॉइन, गोल्ड कॉइन्स हैं आपके, देन सिल्वर कॉइन्स हैं, कॉपर के कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स पे आपकी पेंटिंग्स बनी होती है, पंचमार्क कॉइन्स हैं, राजा का नाम लिखा हुआ है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है. तो आप ये सोचो उस समय ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी थी. Coins are the major source of information regarding the trade between the different places. For example, इंडिया में हमें रोमन एम्पायर के इतने गोल्ड कॉइन्स मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया का रोम के साथ उस समय ट्रेड कनेक्शन था. सो कॉइन्स रिवील द इंफॉर्मेशन कि हाउ गुड द रूलर वॉज देयर एंड हाउ वॉज दे ट्रेडिंग. इफ द कॉइन्स आर ऑफ द प्योर गोल्ड, तो आप लगा सकते हो अच्छा गोल्ड कॉइन्स बने हुए हैं गुप्ता पीरियड में. आप देखो भाई बहुत फ्लोरिश रहा होगा गुप्ता पीरियड, तभी तो गोल्ड कॉइन्स इस्टेब्लिश हैं कि भैया लोग भी गोल्ड कॉइन में जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. सो कॉइन्स हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं सिविलाइजेशन की. सिमिलरली मैंने आपको बताया कि रोम के इंडिया में मिले और इंडिया के जो कॉइन्स हैं वो हमें रोम में मिले. तो क्या है, वी आर हैविंग द ट्रेड रिलेशन विद द रोम. Now moving to the other resources, that is known as miscellaneous sources. There are the different other sources to know about the past, such as the graves हो गए, animal remains हो गए. For example, bird, fish, animals remains. They tell us about the ancient sites and they give us the information about the food habits of the people or the animals found there. At some places, granaries we have found unearthed which tell us मच अबाउट द एंशियंट टाइम. बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिल रही हैं तो उससे ये पता चलता है कि अच्छा पहले के लोग भी सेव करके रखते थे ग्रेन, अगर कोई आगे प्रॉब्लम आ जाए या फ्यूचर के लिए तो वो ग्रेनरी में ग्रेन्स को रखते थे. तो इस तरीके के मिसलेनियस सोर्सेज भी होते हैं जो हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं. नंबर 1, हिस्ट्री इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स. While no written records when not available, that is known as prehistory. Means history, written record, and prehistory, no written record. Then history can be divided into 3 phases or 3 periods, that is ancient, medieval and modern. The dates are suffixed with BC before 0 and AD after 0. Then we have discussed most of the settlements came up along the फर्टाइल डेल्टाज ऑफ द रिवर. लोग नदी के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे. पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द कारवां फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड डू द इंटरेक्शन विद द अदर पीपल. देन वी हैव डिस्कस्ड आवर मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर द लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज को बेटा हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, दैट इज रिलीजियस और सेक्युलर इन नेचर. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने इंक्लूड किए थे एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स एंड एक्सेट्रा. So that's end for the chapter. I hope you understand. Please do the exercise carefully.